Hello students, we will start with the topic of hematology basics where we will be covering a lot of topics, right? So first we will see sites of erythropoiesis right from fetus, then adults, okay, all the sites we will cover, then stages of erythropoiesis, because till the stage of formation of RBCs there are various stages which you will see in a bone marrow slide, right? So you should have an idea that what are the stages which are basically there during the formation of a RBC, right? Next, RBC indices. Now you know the terms such as RBC count, MCV, MCH, MCHC. What are they? How will you use them to evaluate a patient of anemia? So just a bit of it, an introduction to the topic of indices of RBC, right? Next, approach to anemia. This is a very important topic whether you are a medical officer, you are MD medicine, you are a doctor, and you should know if a patient comes to you with low hemoglobin, what test you will ask for and how will you approach towards the diagnosis and later obviously the treatment of anemia, right? RBC shape and size abnormalities. Now they are a very important part because when you are evaluating a peripheral blood film, right, you should look for the size as well as the shape, various shapes of RBCs, which will help you to know what is the cause of anemia, right? So it is very important what is the normal shape of RBC, what are the various shapes of RBC which you will see in various morphological abnormalities and the subsequent diagnosis, right? And the next is size abnormalities. See, it is very important to know the concept of anisocytosis as well as poikilocytosis. Poikilocytosis is variation of the shape of RBC, whereas variation in the size of RBC is called as anisocytosis, right? Now RDW is another RBC indices which we will study later, which will help you to find out if there is variation in the size of the RBC, right? RBC inclusions, it is again very important finding which you usually visualize under the microscopic examination, and yes, these inclusions also help you to point towards the diagnosis of the type of anemia. For example, Howell Jolly bodies, which are the DNA inclusions seen in your RBC, right, which is formed due to ineffective erythropoiesis, is an important finding of megaloblastic anemia, and along with certain other findings, if you find these Howell Jolly bodies, you should think about the diagnosis of megaloblastic anemia. So these 6 things which are very important towards, right, towards the diagnostic approach towards anemia, we will cover it in your basics of hematology, right? So next, site of hematopoiesis, right? It is important to remember what is the site of erythropoiesis, hematopoiesis, right? You love small baby. It is a mnemonic. You love small baby, right? You yolk sac. So yolk sac is the first site where the hematopoiesis occur till the 2nd month, right? Till the 2nd month of gestation, it occurs in the yolk sac, followed by liver and spleen. Love small, right? From the 2nd to the 4th month, it is liver and spleen, followed by bone marrow, right? From the 4th month, right, till the birth of the baby, what is the site of hematopoiesis? Bone marrow. So you should not forget these sites. It is very important, right? It is very important to remember these sites. You love small baby, yolk sac, liver, spleen, bone marrow till 2nd month, 2nd to 4th month, 4th month to birth. You just remember these things because number of MCQs are formed from this small mnemonic, right? Site of hematopoiesis from birth till puberty, right? Till birth we discussed it is the bone marrow. From birth to puberty it is the bone marrow, right? In whole of the skeleton is involved. Whereas after puberty, or can I say in adult, after puberty, in adult, these are the terms they will use interchangeably whether be it any exam, right? But the concept remains the same. So after puberty, it is a red marrow present in the axial skeleton, that is vertebrae, ribs, sternum, skull and pelvis. So any question asked about the site will be asked from this single slide, right? Okay, so we'll just discuss where does hematopoiesis occur in the adult, right? If you remember adult, we already discussed. After puberty, you can say, right, the central skeleton including proximal ends of femur and pelvis, right? If I ask where does hematopoiesis occur in the fetus, you have to think about yolk sac of oocyte till, right, till 2nd month. From 2nd to 4th month, it was liver and spleen, followed by bone marrow till birth, right? So you love small baby, same mnemonic you can apply here, right? Next, erythropoietin is a very important hormone synthesized by the kidney which helps in this
entire process of erythropoiesis. So if you remember this property that it is synthesized by some other part, whereas the action is distant from this part which is synthesizing it. That is a property of hormone, right? So you can remember erythropoietin is a very important hormone. As the name suggests, erythro, it is involved in the process of erythropoiesis, right? Okay, so thrombopoietin is produced by kidney and liver. Common site of hematopoiesis in age less than 6 weeks of gestation, or you can say till 2 months. What was the site? Yolk sac. You love small baby again, okay, yolk sac. So it was till 2nd month, right? What area of bone marrow is there where the hematopoietic cells are found? So if you just remember, it is a red marrow. What is a yellow marrow? Yellow is replaced by the what? Adipose tissue. So it is not the part where the hematopoiesis occur. It is a red marrow. If it is red in color, can you remember, hematopoiesis will occur in the red part of the marrow, right? Okay. Stages of erythropoiesis. It is very important, especially when you are looking into a bone marrow slide, right? So when you look into a bone marrow slide, yes, you will see erythroblast there, various normoblast stage. It is also important to report which predominant stage of normoblast is there, right? All these things are important. Yes, you should get into an introduction of this concept as well, but that we will deal with later. Right now it is mainly important just to remember these stages of erythropoiesis, right? So pro-erythroblast, obviously something very initial stage, pro-erythroblast. It is the first stage where the hemoglobin can be detected with the help of electron microscopy, right? With the help of electron microscopy, right? Next is early normoblast, basophilic erythroblast. You also call it as basophilic erythroblast because here there is a tinge of basophilic tinge is there, right? But intermediate normoblast or polychromatic normoblast, right? It is the first stage where the first detection of hemoglobin under the light microscopy with the help of Romanowski stains, or you can say Giemsa stain, first hemoglobin can be detected here. So the tinge of color is changing. It is coming towards a reddish tinge, which is actually due to hemoglobin, right? So it is a polychromatic stage, or they can ask you intermediate normoblast is the stage where the first detection of hemoglobin occurs with the help of Giemsa. Late normoblast, it is the orthochromatic stage followed by reticulocyte, right? And this reticulocyte takes around 1 to 2 days to mature into a normal RBC, which you usually visualize in your PBF, peripheral blood film. These are the stages which will be present in the bone marrow, right? It will be the bone marrow where all these stages are there, and then finally these RBCs you can visualize under your peripheral blood film, right? First detection of hemoglobin by electron microscopy will be seen in pro-erythroblast, the very initial stage where you actually call it as erythroblastic stage. There the hemoglobin can be detected, but not under the light microscopy, only with the help of certain specialized microscope, that is the electron microscope, right? First detection of hemoglobin by Giemsa stain is seen in, by Giemsa stain it will be what stage? It will be polychromatophilic erythroblast, where the first detection of hemoglobin occurs with the help of Giemsa stain, right? Next, see this diagram, this slide is only to tell you that the hemoglobin levels vary, right? If an adult male comes to you and says and shows his report and the hemoglobin you see is around 12.5 gram per deciliter, will you call him anemic? Yes, because the normal levels in an adult male is 13 to 17 gram per deciliter. Even if he says his hemoglobin is 12.5, right, you do label it as anemic patient. But if a female, adult non-pregnant female comes to you and shows her hemoglobin as 12.5, she is not anemic, right? So this table is just to tell you that yes, hemoglobin values vary, and in the newborn it is very high. The value of hemoglobin is very high because the whole of the part of marrow is red marrow, helping in the process of erythropoiesis, right? Later into the adult stage, this red marrow is replaced by the yellow marrow or the adipose tissue, and thus the erythropoiesis synthesis is decreased compared to the newborn, right? So I'm just showing you this diagram to show that yes, these values of hemoglobin do vary, and you should have an idea that what is the normal value in an adult male, in an adult female, and especially if a 6-month-old baby is coming to you and showing the hemoglobin to be suppose 13.5, right? You should know that the normal value is this much. So
if you have already decided that an adult male comes to you with 12 gram per deciliter hemoglobin and you have labeled him as an anemic patient, what will you do next, right? You will ask for MCV values. You will just look into the report and search for MCV value, right? So MCV is the volume, mean corpuscular volume occupied by the RBC. Right. So the normal MCV is around 80 to 100 femtoliter, right? If the RBC's MCV is around 90 femtoliter, right? If you look at the MCV, you search for MCV and that is 90 femtoliter, you say, okay, this MCV is right. So MCV suppose you see that is 90 femtoliter. तो हमें ये तो पता चल गया कि yes hemoglobin normal value से कम है, anemic है patient, MCV 90 femtoliter है, range क्या है, normal range में है, size normal RBC के comparative है, तो normocytic anemia है. तो मुझे एक बहुत अच्छा डिफरेंशियल मिल गया कि yes the one of the causes of these will fit into the his cause of anemia, right? If I see कि MCV तो 80 से भी कम है, it is around 70 femtoliter, right? So you will think about a cause of microcytic anemia. What are the 4 important causes of microcytic anemia? The mnemonic is Sita. We will study it later, don't worry. But sideroblastic anemia, iron deficiency anemia, thalassemia and anemia of chronic disorders. In fact, iron deficiency anemia being the most common cause of nutritional anemia should be ruled out, especially in females, right? So you will just see one of the differential should fit into it, right? Then comes the role of retic count, right? Peripheral blood film findings, then other clinical findings as well. Then you can order for tests like iron levels, right? Then total iron binding capacity. These things are secondary. You should have समथिंग इन योर माइंड कि ठीक है इनमें से तो एक कॉज पहले मुझे रूल आउट करना चाहिए, तभी यू विल थिंक ऑफ कि मुझे आयरन लेवल्स चेक कराने चाहिए कि नहीं कराने चाहिए, बिकॉज आयरन लेवल्स आर नॉट कवर्ड इन योर नॉर्मल सीबीसी रिपोर्ट. इसके अलग से यू हैव टू ऑर्डर फॉर अ टेस्ट. तो आपको यू शुड हैव एन आइडिया कि एमसीवी नॉर्मल है, एमसीवी डिक्रीज है, एमसीवी इंक्रीज है. एमसीवी इंक्रीज है इफ इट इज मोर देन 100 फेमटोलीटर मीन्स इट इज मैक्रोसिटिक एनीमिया. मैक्रोसिटिक आरबीसीज आपको दिख रहे हैं. कॉजेज क्या हो सकते हैं? दे कैन बी डिवाइडेड इनटू मेगालोब्लास्टिक causes as well as non-megaloblastic causes of anemia. When I am saying megaloblastic, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे. 3 ट्रायड में हम पढ़ते हैं कि क्या पेरिफेरल ब्लड फिल्म फाइंडिंग्स आती है. ये भी याद रखो कि बोन मैरो कंफर्मेटरी टेस्ट है. बोन मैरो में अभी अगर आपको मेगालोब्लास्टिक फाइंडिंग्स दिखती है, देन यू कैन वेरी इजीली लेबल कि येस ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का पेशेंट है, विटामिन B12 के इंजेक्शन लगने चाहिए एंड देन सब्सिक्वेंट टेस्ट कैन बी डन, राइट. बट मैक्रोसिटिक एनीमिया में मेगालोब्लास्टिक कॉजेज भी है. देयर आर आल्सो नॉन मेगालोब्लास्टिक कॉजेज ऑफ मैक्रोसिटिक एनीमिया व्हिच आर लिवर डिजीज, अल्कोहलिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, MDS, राइट. दीज there is a mnemonic called as my liver bleeds a lot which we will be studying in our subsequent slides. but ये पूरे इसमें यही concept है कि अगर patient आता है hemoglobin कम है, मैंने MCV देखा, MCV में देखा 80 to 100 femtoliter है कि नहीं है, ठीक है. अगर वो है तो normocytic anemia के cause में इनमें से rule out करूंगी, ठीक है. MCV less than 80 है तो microcytic anemia के 4 important causes में से rule out करूंगी, and if MCV is more than 100 femtoliter I should rule out macrocytic causes of anemia, right? Okay, so these are the normal RBCs. How do normal RBCs look? अभी इसमें आपको क्या पता चल रहा है? ठीक है, राउंड है, एक ये चीज पता चली. कोई ब्लू कलर का न्यूक्लियस है? नहीं है. दे आर ए न्यूक्लिएटेड, क्योंकि न्यूक्लियस तो एक्सट्रूड आउट हो गया था, तभी जाके नॉर्मल मेच्योर आरबीसीज बने थे. तो ए न्यूक्लिएटेड है. सेंट्रल 1/3 पैलर है. दिख रहा कितना अच्छा, यू कैन वेरी इजीली अप्रिशिएट द सेंट्रल 1/3 पैलर. तो यही चीज है जो आप पेरिफेरल ब्लड फिल्म में भी देखोगे कि जो सेंट्रल पैलर है पहले तो वो उतना ही है कि नहीं है. सपोज ये 1/3 नहीं होके इससे ज्यादा हो जाता, मतलब कितना ज्यादा हो जाता, 50% से ज्यादा. जैसे ये आरबीसी है और जो सेंट्रल पैलर है मोर देन 50%, मतलब पूरे इस एरिया का 50% से ज्यादा ही सेंट्रल पैलर हो जाता. तो मैं क्या बोल सकती थी कि ये तो हाइपोक्रोमिक है, क्योंकि नॉर्मल पैलर तो सिर्फ 1/3 को ही ऑक्यूपाई करता है. और ये क्यों ऑक्यूपाई करता है? सी, इफ यू आर व्यूइंग एट द आरबीसीज फ्रॉम द टॉप व्यू, जो आप नॉर्मली माइक्रोस्कोप में देखते वक्त लेंस की हेल्प से टॉप व्यू में ही देख रहे होते, तो आपको इस टाइप का आरबीसी दिख रहा है. लेकिन अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखूं जो आपको माइक्रोस्कोप में नहीं दिखता है, देन यू कैन अप्रिशिएट कि जो सेंट्रल पार्ट है, इनर पोर्शन ऑफ फ्लेक्सिबल बाइकॉन्केव डिस्क है, दैट इज लेस थिक इन देन द आउटर पोर्शन. जो आउटर पोर्शन है पेरिफेरी पे वो थिकर है,
ठीक है, डिस्क के जैसे जो सेंट्रल एरिया है वो लाइट है और जो बाहर वाला पार्ट है वो बहुत थिक है, उसकी वजह से यू आर एबल टू अप्रिशिएट दिस सेंट्रल 1/3 पैलर। लेकिन ये जो पैलर है दैट शुड रिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ टू 1/3, राइट। अगर ये मोर देन 50% या मोर देन हाफ हो जाता है तो मैं कह सकती हूँ कि ये तो हाइपोक्रोमिक आरबीसीज हैं। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू विल विजुअलाइज इफ यू आर लुकिंग एट एन एनीमिक पेशेंट। ठीक है, सेकेंड आप क्या देखोगे, उसकी रिपोर्ट में एमसीवी भी देखोगे, इन दोनों चीजों को कोरिलेट भी करोगे। कोरिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर पैथोलॉजी, राइट। राइट, सो माइक्रोसिटिक आरबीसी, अब मैंने देखा एमसीवी 80 फेम्टोलीटर से कम है, सपोज 70 फेम्टोलीटर है, और मैंने पेरिफेरल ब्लड फिल्म देखा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड रिमेंबर, यू कंपेयर इट विद द साइज ऑफ अ रेस्टिंग लिम्फोसाइट। आपने एक लिम्फोसाइट ढूंढा और उससे आपने आरबीसी का साइज कंपेयर किया, देख रहे हो दे आर स्मॉलर देन द लिम्फोसाइट, और इनफैक्ट नॉर्मल आरबीसी से भी कंपेयर कर सकते हो, देन ऑल्सो यू विल अप्रिशिएट यस दे आर स्मॉलर देन द नॉर्मल आरबीसी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सेंट्रल पैलर देखते ही आपको इतना खाली खाली सा एरिया दिखेगा इनसाइड द आरबीसीज कि आप बोल सकते हो कि द सेंट्रल पैलर इज मोर देन हाफ। ठीक है, तो हाइपोक्रोमिक हो गए ना, these are microcytic hypochromic RBCs। अब ये मैंने पिक्चर में देख लिया या मैंने अपनी रिपोर्ट में देख लिया कि पैथोलॉजिस्ट ने बोला है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसीज है, एमसीवी मैंने देखा 70 फेम्टोलीटर है, तो मेरे पास बहुत अच्छे से ये 4 इंपॉर्टेंट कॉजेज हो गए एंड आई कैन एक्चुअली टेक हेल्प फ्रॉम दीज 4 कॉजेज एंड फाइंड आउट कि इसमें से क्या कॉज है। अपार्ट फ्रॉम क्लिनिकल फाइंडिंग्स, ये मेरी मेन पैथोलॉजी से फाइंडिंग्स आई हैं कि येस इट कैन बी सीता, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर्स। इनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इट इज ऑल टुगेदर द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डिफरेंट क्लास, जो हम एक छोटी सी क्लास में कवर कर लेंगे व्हाइल स्टडिंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगेन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, न्यूट्रिशनल एनीमिक कॉज है जो इंडिया में बहुत कॉमन है, तो आपको हमेशा यू हैव टू रूल आउट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बिफोर कमिंग इनटू कंक्लूजन ऑफ एनी अदर डायग्नोसिस, राइट। मैक्रोसिटिक आरबीसीज दिख रहा है, ये नॉर्मल आरबीसीज है, कितने बड़े आरबीसीज है। सेकंड मैंने बोला सेंट्रल पैलर देखना है, क्या इसमें पैलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, पैलर है नहीं, साइज में बड़े हैं बट जो सेंट्रल 1/3 पैलर था वो है ही नहीं, दैट इज व्हाट मैक्रोसिटिक आरबीसी। तो क्या इसका एमसीएच क्या होगा, एमसीएच तो बढ़ जाएगा ना, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में एमसीएच इंक्रीज होता है क्योंकि जो मैक्रोसिटिक आरबीसीज है वो बड़े भी हैं और उनका सेंट्रल पैलर भी नहीं है, और एमसीवी तो मैंने बताया मैक्रोसिटिक है तो ग्रेटर देन 100 फेम्टोलीटर होगा, राइट। मेगालोब्लास्टिक एंड नॉन मेगालोब्लास्टिक कॉजेज ऑफ मैक्रोसिटिक आरबीसीज, मैं पहले इस पे आती हूँ, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, इस एक निमोनिक से इसके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। माय लिवर ब्लीड्स अ लॉट, एमडीएस, लिवर डिजीज, हिमोलिटिक एनीमिया, अल्कोहलिज्म, और अगर आप देखते हो लॉट, लो थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म, क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्रोसिटिक आरबीसी, उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म दिया होगा, नहीं तो एमडीएस दिया होगा, अल्कोहलिज्म दिया हो सकता है, एनी ऑफ द ऑप्शंस, बट इसमें मेनली यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। वेरी इजी निमोनिक, माय लिवर ब्लीड्स अ लॉट, 5 एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेगालोब्लास्टिक कॉजेज ऑफ मैक्रोसिटिक एनीमिया, राइट। कॉज ऑफ मैक्रोसिटिक एनीमिया, राइट, मेगालोब्लास्टिक बहुत कॉमनली पूछा जाता है, वो नहीं है तो अब नॉन मेगालोब्लास्टिक कॉजेज में जाएंगे। माय लिवर ब्लीड्स अ लॉट, लो थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म, इजी। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें पूरा टॉपिक नहीं डिस्कस करके मैं आपको 3 चीजें बताऊंगी विच फॉर्म द बेसिस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। वो क्या है, मैंने ये तो बता दिया कि इसमें मैक्रोसिटिक आरबीसीज दिखेंगे। मैक्रोसिटिक आरबीसीज क्या हो सकते हैं, दे कैन बी राउंड एज वेल एज ओवल, तो आपको दिख रहे हैं ये ओवल शेप के हैं, यस दे आर ओवल मैक्रोसाइट्स, एक चीज ये देख ली। दूसरी क्या देखी, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स दिख रहे हैं, नॉर्मली तो 5 के अराउंड होते हैं, 5 से कम होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 कितने सारे 7 to 8 लोब्स दिख रहे हैं, इट इज अ हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल कब बोलते हो, अगर एक भी न्यूट्रोफिल में 6 लोब्स तक दिख जाते हैं या 5 लोब से ज्यादा दिखे इन एटलीस्ट 5% ऑफ न्यूट्रोफिल्स, ये एक पैथोलॉजिस्ट को बहुत अच्छे से पता होगा कि यस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, राइट। थर्ड, ट्रायड का थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, हाउल जॉली बॉडीज दिख रही है, ये क्या है, न्यूक्लियर रेमनेंट है। न्यूक्लियर रेमनेंट क्यों होंगे, क्योंकि इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस होगा। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ इनइफेक्टिव हेमाटोपोइसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और हॉवेल जॉली बॉडीज इसमें बहुत कॉमनली दिखती है। तो अगर आपको एमसीवी इंक्रीज दिखा रहा है, एनीमिक पेशेंट है और आपको ओवल मैक्रोसाइट्स, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स और हॉवेल जॉली बॉडीज दिख गई है,
डोंट वेट फॉर एनीथिंग, ऑर्डर फॉर विटामिन B12 या डायरेक्टली आप विटामिन B12 के इंजेक्शन दे दो एंड यू कैन आस्क टू रिपीट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, राइट. Hypersegmented neutrophils are seen in megaloblastic anemia. Right. Macrovelocyte in a peripheral smear is a feature of megaloblastic anemia. Right. Spherocytes, अब देखो, they are smaller. Okay, one thing I told you earlier that MCH will be increased in your megaloblastic anemia, right? Because the central pallor was lacking there. Here, see, spherocytes, they are small. Can you compare? बाकी RBC से कितने छोटे हैं ये, प्लस इनके पास तो सेंट्रल पैलर भी नहीं है. क्या मैं बोल सकती हूँ कि इनका MCHC बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा? जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है इन छोटे से आरबीसी के अंदर इतना ज्यादा हीमोग्लोबिनाइज्ड है, MCHC will be increase in hereditary spherocytosis, right? What are the causes of spherocytes? Hereditary spherocytes तो नाम में ही पता चल रहा है. Also autoimmune hemolytic anemia में भी spherocytes देख सकते हैं. इनको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? कूम्स टेस्ट. कूम्स टेस्ट आपका एंटीबॉडी डिटेक्ट करता है, तो ऑटोइम्यून हीमोलिटिक एनीमिया में पॉजिटिव होगा और हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में नहीं होगा. बट स्फीरोसाइट्स में क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि ये छोटा होता है और पूरा का पूरा अच्छे से हीमोग्लोबिनाइज्ड है. दे लैक द सेंट्रल पैलर और ये दो कंडीशंस में दिख सकता है और इसमें MCHC विल बी इंक्रीज, राइट. MCHC इज इंक्रीज्ड इन एनी डाउट? नो. स्फीरोसाइटोसिस, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में तो डेफिनेटली कम होगा क्योंकि उसमें तो हाइपोक्रोमिक है, राइट. टारगेट सेल्स, टारगेट सेल्स नाम में ही पता चलता है, दे गिव्स अ कैरेक्टरिस्टिक बुलseye appearance. इनर पार्ट इज डार्क, आउटर पेरिफेरी इज डार्क विद द इंटरवीनिंग लाइटर जोन. क्या ये बिल्कुल बुलseye अपीयरेंस दे रहा है? डेफिनेटली बिल्कुल बुलseye. सेंट्रल डार्क रीजन एंड द आउटर पेरिफेरी डार्क रीजन विद द इंटरवीनिंग लाइटर जोन गिव्स अ कैरेक्टरिस्टिक टारगेट सेल अपीयरेंस. बहुत कंडीशंस में दिख सकता है, बट क्या नहीं बोलना है? थैलेसीमिया, T for T, thalassemia and hemoglobin C disease. Apart from that, sickle cell disease, obstructive jaundice following splenectomy, iron deficiency anemia में भी दिख सकता है. But definitely ये दो causes तो नहीं भूल रहे हैं, thalassemia and hemoglobin C disease. Right. अब उसका next आता है acanthocytes, right. अकैंथोसाइट में आपको क्या नहीं भूलना है? देखो, सरफेस पे ही आपको इतनी बड़ी बड़ी प्रोजेक्शंस दिख रही है, इरेगुलरली स्पेस प्रोजेक्शन दिख रही है, क्योंकि इसको आपको डिफरेंशिएट करना होगा बर्ड सेल से, जो हम डिस्कस करेंगे. बट हियर यू जस्ट सी अकैंथोसाइट, दे आर इरेगुलरली स्पेस प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिएबल लेंथ ऑन द सरफेस. बड़ी बड़ी प्रोजेक्शंस है और इरेगुलर है, राइट. Seen in spur cell anemia of liver disease, maculated phenotype following splenectomy. ठीक है. साथ में स्किस्टोसाइट देखो, मतलब फ्रेगमेंटेड आरबीसीज है. बाइट सेल्स ठीक है, किसे क्लियर बीटन ऑफ अपीयरेंस है. इन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हो. हेलमेट सेल्स किस शेप में है? ये देखो बाइट सेल, जैसे एक क्लियर पीस किसी ने एप्पल का खा लिया हो. ठीक है, क्लियर एजेस के साथ बाइट सेल है, राइट. अकैंथोसाइट्स आर सीन इन, कॉजेज में हमने देखा था ए बीटा लाइपोप्रोटीनेमिया. नेक्स्ट, अकैंथोसाइट दिख रहे हैं बड़े बड़े इरेगुलर प्रोजेक्शंस. बर्ड सेल्स आपको डिफरेंशिएट करना है. बर्ड सेल में क्या है? दे हैव रेगुलरली प्लेस स्मॉल प्रोजेक्शंस. देखो इन दोनों में कंपेयर करो, छोटे छोटे रेगुलरली प्लेस प्रोजेक्शंस है बर्ड सेल्स के अंदर. सेकेंडली, बर्ड सेल्स किस में दिखते हैं? कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है. देखो इसी नाम में ही छुपा हुआ है यूरीमिया. बर्ड सेल इज सीन इन यूरीमिया, वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन. सो बर्ड सेल्स आर सीन इन यूरीमिया, राइट. सिकल सेल, सिकल सेल दिख रहा है कैरेक्टरिस्टिक पॉइंटेड एंड्स के साथ. सिकल सेल एनीमिया में सिकल सेल दिखता है. अगर आपको इतना परसेंटेज में दिख रहा है, यू शुड थिंक अबाउट सिकल सेल एनीमिया. स्कीस्टोसाइट्स और फ्रेगमेंटेड सेल्स दो शेप में हो सकते हैं. देखो हेलमेट की शेप में भी हो सकता है, ट्रायंगल शेप स्कीस्टोसाइट्स भी हो सकते हैं. किसमें दिखते हैं? हीमोलिटिक एनीमिया, क्योंकि टूट गए हैं, राइट. सो सीन इन माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया. कार्डियक वॉल प्रोसेसेस, ब्लड जब उससे पास होता है, आर्टिफिशियल प्रोस्थेटिक वॉल्स हैं उनसे पास होते हुए टूट जाता है. कार्डियक वॉल प्रोसेसेस एंड सिवियर बर्न, राइट. सो स्कीस्टोसाइट्स आर फ्रेगमेंटेड सेल्स और ब्रोकन. Helmet cells are characteristic of anemia of hemolytic uremic syndrome, right. hemolysis में दिखता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. टीयर ड्रॉप सेल्स देखो कैसे टीयर ड्रॉप की शेप में दिख रहा है. माइलोफाइब्रोसिस में दिखता है. फाइब्रोसिस और बोन मैरो में दिखता है, जो और कंडीशंस में भी हो सकता है. ठीक है. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो इन्फिल्ट्रेटेड विद हेमेटोलॉजिकल और नॉन हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी, राइट, उसमें टीयर ड्रॉप सेल्स दिखते हैं. बाइट सेल्स, ठीक है, हीज बॉडीज दिखती है, ठीक है, जिसको बाइट ऑफ कर दिया गया है. ठीक है, और उसके बाद आपको क्या दिख रहे हैं? बाइट सेल्स दिख रहे हैं. सीन इन G6PD डेफिशिएंसी एंड अनस्टेबल हीमोग्लोबिन डिजीज.
राइट, बाइट सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ G6PD डेफिशिएंसी, राइट। नॉर्मल वैल्यूज, अब ये नॉर्मल वैल्यू मैंने क्यों बताई है, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक पेशेंट आया है, कोई भी हिमेटोलॉजी का पेशेंट आया है, आपको क्या क्या दिखेगा, हीमोग्लोबिन लेवल्स दिखेंगे, वो हमने ऑलरेडी एक पिछले स्लाइड में दिखा दिया कि हर एक एज के अकॉर्डिंगली क्या हीमोग्लोबिन लेवल्स होते हैं। नेक्स्ट आरबीसी काउंट देखेंगे, इंक्रीज है डिक्रीज है, राइट। एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एमसीवी का इंपॉर्टेंस पढ़ चुके हैं कि आपको एक पूरा डिफरेंशियल मिल जाता है। अगर एमसीवी मोर देन 100 फेम्टोलीटर चला गया, आप सीधा मैक्रोसिटिक एनीमिया के मेगालोब्लास्टिक या नॉन मेगालोब्लास्टिक में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर एमसीवी लेस देन 80 है तो सीता करके हमने 4 डिजीजेस पढ़ी, आप उससे रूल आउट कर सकते हो। नॉर्मोसिटिक है, आप उससे रूल आउट कर सकते हो, राइट। इन सबके एग्जाम्पल्स यू हैव टू रिमेंबर बाय हार्ट। एमसीएच है, मैंने बताया था, एमसीएच डिक्रीज किस कंडीशन में होगा, अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, हाइपोक्रोमिक आरबीसीज है। यहीं पे मैंने बताया मेगालोब्लास्टिक में क्या हो रहे थे, ओवल शेप हो रहे थे, बड़े थे, डेफिनेटली बड़े थे, और उसका सेंट्रल पैलेट नहीं था, तो एमसीएच विल बी इंक्रीज इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एमसीएचसी, ठीक है, मतलब वो किस में इंक्रीज होगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, कौन से सेल्स के अंदर, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में एमसीएचसी इंक्रीज होगा। आरडीडब्ल्यू मैंने बताया आपके एनिसोसाइटोसिस के तो वो पॉइंट आउट करता है। मतलब क्या है इसका, कि जो साइज है आरबीसी का, जो साइज है उसमें जो वेरिएशन है उससे हम आरडीडब्ल्यू पता लगाते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास, ये हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलेसीमिया माइनर को ये डिफरेंशिएट करेगा, लेकिन जितना ज्यादा वेरिएशन दिखेगा आपको एक पेरिफेरल ब्लड फिल्म के अंदर, ठीक है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखेगा तो आरडीडब्ल्यू ज्यादा होगा, तो मतलब आयरन डेफिशिएंसी में ज्यादा होगा कंपेयर टू माइनर थैलेसीमिया माइनर पेशेंट्स। प्लेटलेट काउंट, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, थ्रोम्बोसाइटोसिस है, या प्लेटलेट काउंट बिल्कुल नॉर्मल है। इनफैक्ट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जब आप पढ़ोगे तब देखोगे उसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, ठीक है। तो प्लेटलेट काउंट कितना है ये तो आपको पता ही होना चाहिए, इट रेंजेस फ्रॉम 1.5 to 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। नेक्स्ट आरबीसी इंडिसेस, डू नॉट गेट मच इनटू द डेप्थ, बट कुछ पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। एमसीवी में क्या, एवरेज वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल रेड सेल है, यूनिट क्या है, फेम्टोलीटर्स है, राइट। और ये क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन आरबीसी है, मतलब पैक्ड सेल वॉल्यूम इन परसेंटेज बाय आरबीसी काउंट, राइट। एमसीएच, ये क्या है, एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन ईच रेड सेल, इट इज एक्सप्रेस्ड इन पिकोग्राम्स, राइट। हीमोग्लोबिन बाय आरबीसी काउंट। नेक्स्ट एमसीएचसी, this represents the average concentration of hemoglobin in a given volume of packed red cells, gram per deciliter में आता है hemoglobin by PCV। RDW, it is the degree of variation of red cell size और एनिसोसाइटोसिस, इसका नॉर्मल वैल्यू कितना है 11.5 to 14.5। नेक्स्ट साइज ऑफ आरबीसीज इज मेजर्ड बाय एमसीवी, ठीक है। ऐसे आपसे पूछे हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा के लिए क्या करते हैं, एमसीएच करते, तो आरबीसी इंडिसेस के डेफिनेशन में क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। Lifespan of RBCs in adults, everybody knows it is around 120 days, right? Okay. Lifespan of RBCs in newborn कितना होगा, newborn के अंदर it is around 60 to, okay sorry, 60 to 80 days होगा in a newborn. Next, हॉवेल जॉली बॉडीज, ठीक है, ये मैंने आपको बताया किसमें दिखेंगे, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में दिखेंगे। अब देखिए आरबीसी इंक्लूजन स्टार्ट हो गए हैं, व्हाट यू शुड रिमेंबर इज किन कंडीशंस में दिखते हैं और किसके रेमनेंट है। तो हॉवेल जॉली बॉडीज हमने मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में पढ़ा था, इनएफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस की वजह से होता है, न्यूक्लियर डीएनए के रेमनेंट्स हैं, ठीक है, मार्कर ऑफ इनएफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस, और इन कंडीशंस में दिखता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पोस्ट प्लेनेक्टमी, हीमोलिटिक एनीमियाज, राइट। हॉवेल जॉली बॉडीज आर सीन इन पोस्ट प्लेनेक्टमी, राइट। बेसोफिलिक स्टिपलिंग, ये क्या है, राइबोसोम्स के एग्रीगेट है। हॉवेल जॉली बॉडीज किसके थे, डीएनए के, ठीक है, इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस की वजह से। बेसोफिलिक स्टिपलिंग किसकी वजह से, राइबोसोम एग्रीगेट्स है। कोर्स, ज्यादा कोर्स हो जाते हैं इन केस ऑफ लेड पॉइजनिंग, और लाइटर रहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, बट छोटे छोटे डॉट्स दिखेंगे आपको विच आर एक्चुअली द एग्रीगेट्स ऑफ राइबोसोम्स, इन कंडीशंस में मिलेंगे, ठीक है। लेड पॉइजनिंग, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, एमडीएस, थैलेसीमिया, राइट। नेक्स्ट, हीन्स बॉडीज, मैंने बताया हीन्स बॉडीज जब हटाते हैं मैक्रोफेजेस तो वहां पे एक बाइट सेल रह जाता है, तो हीन्स बॉडीज क्या है, प्रेसिपिटेटेड हीमोग्लोबिन है आरबीसी के अंदर, एंड दे आर एसोसिएटेड विद hemolytic anemia, so they are round towards the क्या है, राउंड है, पेरिफेरी में दिख रहा है, एंड दे आर राइट,
and they are seen in NADPH deficiency, G6PD deficiency बहुत important है, unstable hemoglobin diseases. Next, Heinz bodies are removed by macrophages. Next, papenhema bodies, ठीक है, they are light blue to purple fine irregular granules seen inside the RBCs composed of iron. Howell jolly bodies, nuclear DNA. Basophilic stippling किसकी वजह से हो रहा था? राइबोसोम एग्रीगेट थे. पैपेनहीमा बॉडीज क्या? आयरन, ठीक है, सिड्रोटिक ग्रैन्यूल्स है. दे किस में दिखेंगे? आयरन ओवरलोडिंग प्रोसेसेस में दिखेंगे, जैसे हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस, राइट. दे आर टाइनी लाइट पर्पल beaded inclusions, ठीक है, tiny light purple beaded inclusions found along the periphery of the RBCs. So papenhema bodies are composed of iron. Cabot rings, characteristic, right, figure of 8 appearance आपको देता है, and they are remnants of mitotic spindle. They're associated with MDS, megaloblastic anemia, and post splenectomy. Cabot rings are seen in after splenectomy, right. तो अभी तक हमारा